Assalamualaikum class. How are you? Ninth class. I hope you all are fine and doing your work attentively. As I have told you yesterday that we will do the chapter number 6, that is solution, and I told you students learning outcomes, that what you have to learn in this chapter. Now I am going to start this chapter with the topic solution. What is solution? First of all, we come to know. As you are watching here, this is a beaker and there are some particles dissolved in other particles. Okay? The blue colored particles that you are watching in it is the solvent particles, and the yellow colored particles that you are watching in it are the solute particles. When these solute and solvent particles are mixed together, they form a solution. And you can see there is a solution in a beaker, and the particles of the solute and solvent are homogeneously mixed with each other to form a homogeneous mixture. What is homogeneous mixture? You have already learned in previous classes that what is homogeneous and heterogeneous mixture or solution. Homogeneous mixture are the mixture or the solution of two or more components that are mixed with each other, that the constituents are same throughout the solution. For example, when you mix a spoon of sugar in a water, you mix it well, and when it dissolves in water, you can't see the sugar there because it has formed the homogeneous mixture, that the components of the solutions have uniform composition throughout, is called the homogeneous solution. Now we will read the introduction over here, that solutions are homogeneous mixture of two or more components. Generally, solutions are found in three physical states depending upon the physical state of the solvent. For example, alloy is a solid solution. ये alloy क्या होता है? ये भी एक solution की ही form है, लेकिन ये solid फॉर्म में होता है. फॉर एग्जांपल, इसमें जो दो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट, वो ज़रूरी नहीं कि एक लिक्विड हो. जैसे आप नमक में पानी मिक्स करते हैं तो पानी सॉल्वेंट है और नमक सोल्यूट है, तो वो एक तो नमक जो होता है वो सॉलिड होता है और वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, सॉल्वेंट. ऐसा ज़रूरी नहीं है. सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों सॉलिड हो सकते हैं. इस किस्म के सोल्यूशन को हम कहते हैं एलॉय. क्या कहते हैं? डेट इज कॉल्ड ALLOY, एलॉय. व्हाट इज एलॉय? एलॉय इज अ solution that is solid solution which has solid solvent and solid solute as well. Sea water is a liquid solution. ये देखें, sea water, actually sea water is a salty water and there are very minerals and salts are dissolved in water, therefore it is a liquid solution, and air is a gaseous solution. और तीसरी टाइप देखें, gaseous solution. गैशियस सोल्यूशन, ये जो हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, ये मिक्सचर है, सोल्यूशन है डिफरेंट गैसेस का. इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी हैं और हीलियम गैस भी होती है इसमें थोड़ी बहुत, आर्गन भी होती है. तो डैट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, डैट इज कॉल्ड द गैशियस सोल्यूशन. यानी देयर आर थ्री टाइप ऑफ सोल्यूशन: सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड गैशियस सोल्यूशन. ये हम आगे नेक्स्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे. There are 9 type of solution. From gas to gas, e.g. air, we breathe, to solid solution, e.g. dental amalgam. Dental amalgam ये एक solid solution है. जब दांतों में डिके हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, तो उनकी फिलिंग के लिए डॉक्टर जो
मटेरियल दांतों के अंदर फिल करता है उसको हम कहते हैं डेंटल अमलगम, और डेट इज अ सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, ये टूथ फिलिंग में काम आता है। दांतों को जब फिल करते हैं तो उसमें डेंटल अमलगम यूज होता है। लिक्विड सोल्यूशन आर द मोस्ट कॉमन सोल्यूशन बिकॉज ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट वाटर, और ज़्यादातर सोल्यूशन जिनके बारे में आप जानते हैं वो ज़्यादातर लिक्विड सोल्यूशन है, क्योंकि पानी वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और ये हर किस्म के सोल्यूशन में यूज हो जाता है। देयरफॉर देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ लिक्विड सोल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ रेन टू ओशन, यानी एक बारिश का कतरा जो जमीन पे गिरता है वो भी एक सोल्यूशन है, क्योंकि उसमें कोई मिनरल मिक्स हुआ हो सकता है। और ओशन वाटर सॉल्टी होता है, उसमें बहुत से मिनरल्स, बहुत से सॉल्ट जो हैं वो वाटर में मिक्स हुए हुए होते हैं। सी वाटर भी इसी तरह इज अ रिसोर्स ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो सी वाटर है उसमें तकरीबन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोल्यूशन। नाउ वी विल कम ऑन द अदर। Solution is a homogeneous mixture of two or more substances, यानी कि जरूरी नहीं है सोल्यूशन में सिर्फ दो सब्सटेंसेस हो, टू भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट, सोल्यूट, और दो सोल्यूट भी ऐड हो सकते हैं, टू और मोर सब्सटेंसेस। द बाउंड्रीज ऑफ कंपोनेंट्स कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, दैट इज अ सोल्यूशन एग्जिस्ट एज अ वन फेज सोल्यूशन को ही होमोजीनियस सोल्यूशन कहते हैं। जैसे नमक में, पानी में आप नमक मिक्स करते हैं तो आपको डिजोल्व होने के बाद नमक नजर नहीं आएगा, यानी उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं, उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो डिस्टिंग्विश हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, वो एक ही फेज में वो सोल्यूशन आपको नजर आता है, उसे हम होमोजीनियस सोल्यूशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल एयर भी है। एयर में देखें, यू आर ब्रीथिंग इन एयर, अब आपको पता है कि एयर में ऑक्सीजन भी है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस भी है, आर्गन गैस भी है, लेकिन आप क्या उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं देख के कि इतने हिस्से आपको ऑक्सीजन नजर आ रही है, इतने हिस्से आपको नाइट्रोजन नजर आ रही है? नहीं, यू कांट डिस्टिंग्विश बिकॉज इट इज अ होमोजीनियस सोल्यूशन। सो एयर इज अ होमोजीनियस सोल्यूशन क्योंकि उसमें बहुत सी गैसेज होती हैं। सेकेंड होमोजीनियस सोल्यूशन होता है ब्रास का, डेट इज अ सॉलिड सोल्यूशन। इसमें जिंक और कॉपर, ये कॉपर और जिंक दो मेटल्स हैं, इनको गर्म करके आपस में मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया जाता है जिसको ब्रास कहते हैं, और ये होम इक्विपमेंट में यूज होते हैं। आपके वॉशरूम में ये टैप वगैरह लगे हुए होते हैं, डेट इज मेड अप ऑफ मोस्टली ब्रास के बने हुए होते हैं। इसके बाद शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ये भी एक होमोजीनियस सोल्यूशन होता है। अब वाइज आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्योर सोल्यूशन में और एक होमोजीनियस सोल्यूशन में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ अ प्योर सोल्यूशन? ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड। ये इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें। द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दो नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि आप किस तरीके से एक प्योर लिक्विड को एक सोल्यूशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क बता सकते हैं। इस तरीके से बॉयज़ के सोल्यूशन तो आपको पता ही है, सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलकर बनता है, जबकि प्योर लिक्विड जो होता है वो एक सिंगल कंपाउंड होता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को डिफरेंट बीकर्स में लेके गर्म करना शुरू कर देते हैं, या फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक सोल्यूशन को लेते हैं जिसमें नमक और पानी मिला हुआ है और उसको आप गर्म करना शुरू कर देते हैं, इतना गर्म करते हैं कि एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो सारा का सारा पानी जो है वो स्टीम बन के एवेपोरेट हो जाता है और पीछे कुछ वाइट सा मटीरियल पॉट में रह जाता है, वो सॉल्ट होता है। इसका मतलब है ये जो सोल्यूशन था ये एक प्योर सोल्यूशन नहीं था, प्योर लिक्विड नहीं था, ये एक सोल्यूशन था। ठीक है, तो आप एवापोरेशन के मेथड से एक सोल्यूशन को और एक प्योर लिक्विड को अलग कर सकते हैं। प्योर लिक्विड सिर्फ वाटर अगर आप ले लेते हैं, उसमें किसी किस्म के कोई आयन नहीं है, और आप उसको गर्म करते हैं, एवापोरेट करते हैं, तो पीछे कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता, दैट इज अ प्योर लिक्विड। तो दिस इज द वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्योर लिक्विड एंड अ सोल्यूशन। द लिक्विड विच एवापोरेट कम्प्लीटली लीविंग नो रेजिड्यू इज अ प्योर लिक्विड। ठीक है, while a liquid which leave behind a residue on evaporation is a solution. This is the difference. ये आंसर है इसका। An alloy like bronze is also a homogeneous mixture, although it cannot be separated by physical means.
यानी ये ब्रास जो है, एयर जो है, इसको आप फिजिकल मीन से तो इनके कंपोनेंट्स को अलहदा नहीं कर सकते क्योंकि ये मिक्सचर है। नंबर 1 और 2 क्या, मिक्सचर की क्या आप एक मिक्सचर को कैसे पहचान सकते हैं? नंबर 1, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, यानी एक मिक्सचर में उसके कंपोनेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज शो होती हैं। नंबर 2, इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, वेरिएबल कंपोजिशन यानी ये जिंक और कॉपर को जब आपस में मिक्स करके ब्रास बनाया जाता है तो ये एक खास अमाउंट में, एक खास रेशो में ये मिक्स करते हैं तो ब्रास बनता है, मीन इसकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है। अब एक और टाइप का सोल्यूशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज एक्वस सोल्यूशन। एक्वस का क्या मतलब होता है? एक्वा, एक्वा मीन वाटर, एक्वा सोल्यूशन मीन ऐसे सोल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, यानी इसमें पानी का होना जरूरी है। द सोल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड द एक्वस सोल्यूशन। ठीक हो गया? एक्वस सोल्यूशन, वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट एंड टर्म्ड एज सॉल्वेंट, यानी सोल्यूशन में जो सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं और जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होता है उसको सोल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं तो शुगर इसमें सॉल्वेंट होगा और वाटर इसमें शुगर इसमें सोल्यूट होगा और वाटर इसमें सॉल्वेंट होगा। एक्वस सोल्यूशन आर मोस्टली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज, लैब में काम करते हुए आपको एक्वस सोल्यूशंस की जरूरत पड़ती है। वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिसॉल्व्स मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाएं, व्हाई वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, और उसका आंसर यहाँ से आप लिखेंगे, वाटर से लेके यहाँ पे अर्थ क्रस्ट तक। उसके बाद अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन दो सब्सटेंसेस से मिलके बनता है, फर्स्ट इज द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब हम देखते हैं कि सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज सोल्यूट? तो अभी मैं ये सोल्यूट की डेफिनेशन अंडरलाइन करवाने लगी हूँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो जो चीजें आपको मैं अंडरलाइन करवा रही होती हूँ, ठीक है, उसको आपने अच्छे से याद कर लेना होता है और नेक्स्ट डे आपने मुझे बताना होता है फीडबैक देके कि आपने उसको याद किया है या नहीं। The components of solution which is present in smaller quantity is called solute. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, this is called the solute. A solute is dissolved in a solvent to make a solution. For example, salt solution is made by dissolving salt in water. So this is called the salt solution. Salt is the solute and water is a solvent. More than one solute may be present in a solution. For example, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे पेप्सी वगैरह आप पीते हैं तो आप देखें वो एक सोल्यूशन है, उसमें पानी भी होता है, पानी उसमें एज अ सॉल्वेंट, वाटर उसमें सॉल्वेंट होता है, लेकिन अदर सब्सटेंसेस जैसे उसमें शुगर भी डली हुई होती है, उसमें सॉल्ट भी होता है, उसमें कलर भी होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड की हुई होती है। तो ये जो सोल्यूशन है सॉफ्ट ड्रिंक का, डेट इज मेड अप ऑफ मोर सब्सटेंसेस। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपने पढ़ना है डेट इज द सॉल्वेंट, सेम जैसे आपने सोल्यूशन सोल्यूट के बारे में पढ़ा है कि वो लेसर अमाउंट वाला सब्सटेंस होता है, लेकिन द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व सोल्यूट इन अ सोल्यूशन इफ मोर देन वन सब्सटेंस आर प्रेजेंट, तो वन सब्सटेंस एक्ट एज सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट एक ही होता है, सोल्यूट ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अब रेफर्ड अबव इन सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में जैसे कि पहले भी बताया कि सॉल्वेंट तो वाटर ही है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, शुगर और कलर वगैरह जो ऐड किया हुआ होता है वो उसमें सोल्यूट के तौर पे एक्ट करते हैं। नाउ द अदर इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी आपको अब तक सोल्यूशन का तो पता चल गया कि दो सब्सटेंसेस से मिल के जो चीज़ बनती है डेट इज सोल्यूशन। अब हमने देखना है सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। When a small amount of solute is added in a solvent, solute dissolve very easily in the solvent. If the addition of solute is kept on, a stage is reached when solvent cannot dissolve any more solute. For example, you take a cup of water. First you add 1 spoon of salt in it and stir it, तो वो मिक्स हो जाएगा।
उसके बाद आप सोल्यूट यानी कि नमक या सॉल्ट को 2 चम्मच कर दें, फिर 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, वो उसमें डिज़ोल्व होता जाएगा। ठीक है। अब एक वक्त ऐसा आएगा बॉयज़ के ये जो सॉल्वेंट है इसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, यानी अब इस सॉल्वेंट में आप मज़ीद सोल्यूट नहीं डाल सकें, और अगर आप डालेंगे तो वो सोल्यूट जो है वो बीकर में या ग्लास में नीचे बैठ जाएगा, अब वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं जी सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। क्या है जी सैचुरेटेड सोल्यूशन? कि अब जो नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन अ सॉल्वेंट, तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं जी सैचुरेटेड सोल्यूशन। A solution containing maximum amount of solute at a given temperature, टेम्परेचर का जिक्र करना ज़रूरी है, इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, उसको गर्म करना शुरू कर देंगे, तो वो जो नीचे बैठा हुआ नमक है वो तो डिजोल्व हो जाएगा। इसलिए आपने बताना है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया और आपने पानी में नमक ऐड करना शुरू कर दिया। जब नमक नीचे बैठ गया तो आप उसको बोलेंगे कि दैट इज द सैचुरेटेड solution. A saturated solution is the one in which undissolved solute is equilibrium with dissolved solute. ठीक है जी। dissolved solute और undissolved जो solute है दोनों आपस में equilibrium में हो जाते हैं और no more solute can be added there. At this stage dynamic equilibrium is established although dissolution and crystallization continue at a given temperature, but the net amount of dissolved solute remain constant. ठीक है जी। यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम 10th क्लास में आप पढ़ेंगे। ऐसी स्टेट होती है कि जहाँ पे फर्दर रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब है अब आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो फर्दर रिएक्शन नहीं हो रहा और सोल्यूट जो है वो बॉटम में बैठना शुरू हो गया। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन जो है ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब हम देखते हैं जी व्हाट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो नाम से जाहिर है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें अभी कैपेसिटी है कि आप उसमें और सोल्यूट डाल सकते हैं, तो ऐसे सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अ सोल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी एक खास टेम्परेचर पे अभी उसमें इतनी कैपेसिटी है उस सॉल्यूशन में कि आप उसमें मजीद सोल्यूट ऐड कर सकें, लेकिन उससे कम है सोल्यूट उसमें, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। Such solution have the capacity to dissolve more solute to become a saturated solution. तो unsaturated solution को आप मजीद उसमें सॉल्ट डाल के उसको सैचुरेटेड कर सकते हैं जी। तो बॉयज अगला जो टॉपिक है दैट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। पहले आपने टर्म पढ़ी सैचुरेटेड सोल्यूशन, फिर आपने टर्म पढ़ी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड, यानी कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें नमक ऑलरेडी नीचे बैठा हुआ है, उसमें मजीद सॉल्ट हल नहीं हो सकता सॉल्वेंट में, उसको जब हम गर्म करते हैं दे डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिजोल्व मोर सोल्यूट। तो जाहिर है उसमें जो पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मूवमेंट तेज हो जाती है, तो उस सॉल्वेंट में एक कैपेसिटी आ जाती है कि वो और सोल्यूट को डिजोल्व कर सकता है। सच सोल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन आर रिक्वायर्ड to form a saturated solution and they become more concentrated। मीन अब ये वो सोल्यूशन होते हैं जो कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन या सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा सोल्यूट कंटेन कर सकते हैं और ये सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाते हैं, ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं जी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। द सोल्यूशन डेट इज मोर कंसनट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते बॉयज। इनको फ्रिज में रखें तो दोबारा से जो इनका एक्स्ट्रा सोल्यूट इनके अंदर ऐड किया हुआ होता है वो क्रिस्टलाइज होकर बाहर निकल आता है। जैसे अगर आप चीनी का शीरा बना के गाढ़ा सा उसको फ्रिज में रखें या फ्रीजर में रखें तो वो रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा, शुगर वाइट क्रिस्टल बन के वापस बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं दे आर नॉट स्टेबल। Therefore, any easy way to get a supersaturated solution is to prepare a saturated solution at high temperature।
तो इसको बनाते कैसे हैं कि कोई भी सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लेते हैं, उसको गर्म करना शुरू करते हैं और उसमें मजीद सोल्यूट डालते हैं, हाई टेम्परेचर कर देते हैं। जितना वो ज़्यादा गर्म होता है उतना ही उसमें सोल्यूट ऐड होता है और एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। इट इज़ देन कूल्ड टू अ टेम्परेचर वेयर एक्सेस सोल्यूट क्रिस्टलाइज आउट एंड लीव बिहाइंड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन आप जैसे इसको ठंडा करेंगे और जितना फालतू सोल्यूट उसमें आपने ज़बरदस्ती गर्म पानी करके ऐड किया होगा वो फिर से वापस क्रिस्टलाइज होकर बाहर निकल आएगा और वो जो सोल्यूशन आपके पास बच जाएगा वो फिर से सैचुरेटेड ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 दैट इज द सोडियम थायोसल्फेट। इसको अगर आप पानी में 20 डिग्री सेल्सियस पे डिसॉल्व करें तो सोडियम थायोसल्फेट की तकरीबन 20.9 ग्राम साल्ट जो होता है वो 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व होता है। लेस देन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट per 100 centimeter cube of water at 20 degree Celsius will be an unsaturated solution। लेकिन जब आप इसको गर्म करेंगे, ठीक है, सोल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट देन 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट, जब आप इसको गर्म करेंगे तो 20.9 ग्राम जितनी के सैचुरेटेड सोल्यूशन में अमाउंट होती है उससे ज़्यादा होगी, तो ये सोल्यूशन जो बनेगा डेट इज कॉल्ड द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसकी रीडिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आज हमने पढ़ना है डेट इज द डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। वेल, डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को पतला कर देना, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देना, किसी मीठे शरबत को फीका कर देना। तो आप फॉर एग्जांपल आपको मीठा तेज लग रहा है शरबत में, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप उसमें पानी डाल देंगे। जब आप उसमें पानी डालेंगे तो हम कहेंगे ये डाइल्यूशन हो गई है। तो डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसमें सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ा देना, उसमें वाटर डाल के उसको डाइल्यूट कर देना। The solution are classified as dilute or concentrated solution on the basis of relative amount of solute present in them। यानी जितनी अमाउंट सोल्यूट की उसमें प्रेजेंट है उसी हिसाब से आप कहते हैं जी कि ये डाइल्यूट है या ये कंसनट्रेटेड है। डाइल्यूट सोल्यूशन और दो सोल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट इन द सोल्यूशन। ये डेफिनेशन याद कर लें डाइल्यूट सोल्यूशन की, कि ऐसे सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम होती है डेट इज कॉल्ड द डाइल्यूट सोल्यूशन। और कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन सोल्यूशन। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल आप देख लें। फॉर एग्जांपल ब्राइन इज अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी कि जो आपके किचन में सॉल्ट होता है, इसको अगर आप अच्छी तरह सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दे, पानी में बहुत ज़्यादा मिक्स करें और इतना मिक्स करें कि बाकी का सॉल्ट नीचे बैठना शुरू कर दे, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा नमक का। तो इसको हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। इसको भी अंडरलाइन करें बॉयज। ब्राइन को क्या कहते हैं? ब्राइन इज द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। These terms describe the concentration of the solution. Addition of more solvent will dilute the solution and its concentration decreases। जाहिर है जब आप किसी चीज़ में पानी डाल देंगे तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, कम होगी और वो जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हैज़ बीन एक्सप्लेन इन सेक्शन। यानी आगे हम पढ़ेंगे कि हम एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट सोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बॉयज़ आज के लिए आपका इतना ही है। आज जो हमने पढ़ा है मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ। सिर्फ आपने इसमें डेफिनेशन याद करनी है सोल्यूशन की, सॉल्वेंट की, सोल्यूट की, सैचुरेटेड सोल्यूशन की, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की और डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन की। सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है। कल तक आप डेफिनेशन इसकी अच्छे से याद कर लें, इसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है। और अंडरलाइन करके आप मुझे व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पे कि टीचर हमने ये डेफिनेशन अंडरलाइन करके याद कर ली हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह।